benzoic acid now from benzanylide. See, we are going to use a reflux condenser. अभी हमको यहाँ पे हमारा इरादा बेंजोइक एसिड बनाने से नहीं है, हमारा इरादा ये बात समझने से है कि हम एक रिफ्लेक्स असेंबली कैसे लगाते हैं. हमको हमेशा इसके आगे प्रैक्टिकल्स में बोला जाएगा दैट पुट अ रिफ्लेक्स असेंबली. तो वी शुड नो व्हाट वी आर सपोज टू डू व्हेन वी वांट टू पुट अ रिफ्लेक्स असेंबली एंड व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर असेंबली. So what we are going to do here is we are going to take, for example, we are going to take this water bath. This water bath can serve many purposes. जैसे for example today we are taking water net. We can at times take oil net. अब क्योंकि oil बहुत महंगा पड़ता, इतने सारे लोग इतना expensive oil खाली जलाएंगे, तो what we can do is we can use sand also. Sand also gives you very high temperature. मतलब भट्टी होती है ना, तो we use sand instead of oil bath. We can use the sand. But now, right now for this experiment, we are using water bath because this will give you temperature approximately. It will keep the temperature at 100 degree at a constant temperature. The reaction will work. अगर हम direct heating करेंगे, तो जैसे हम इडली बनाते वक्त अलग चीजें करते हैं और डायरेक्ट तवे पे करने के टाइम अलग चीजें करते हैं. It is similar to that. It is you are heating it in this steam. This is called हमारे कुकिंग इंडस्ट्री में इट इज कॉल्ड एज अ डबल पैन. चॉकलेट मेल्ट करते हैं हम, ऐसे डबल पैन लगा के. सिमिलरली ये वाटर बाथ वी यूज दिस वाटर बाथ ऑन द सेम लाइन. नाउ व्हेन यू हैव टू पुट अ रिफ्लेक्स असेंबली, सो व्हाट वी डू इज वी टेक दिस RBF व्हिच इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इसमें यू विल ऐड योर बेंजानिलाइड 1 ग्राम एंड इट सेज दैट यू हैव टू ऐड 15 ml 15 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमारे लिए ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना, प्रोसीजर हमारे सामने है, राइट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों, राइट. व्हाई दिस RBF, क्यों जरूरत है इसकी, व्हाई दिस वाटर बाथ, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर. वी डोंट वांट टू गिव इट अ डायरेक्ट हीटिंग. यू नो अल्कोहल एंड एनी अदर एजेंट लाइक दैट, इफ यू विल डायरेक्टली हीट इट विल बिकम एक्सप्लोसिव, वहीं पर जल जाएगा. तो यू शुड ऑलवेज, जब भी आप अल्कोहल को हीट करें, यू शुड ऑलवेज यूज अ वाटर बाथ. यहाँ पर वी आर हीटिंग आवर बेंजानिलाइड along with sodium hydroxide. And you put the RBF assembly like this. See, this is how you will put the RBF assembly. This is your stand. Okay, this stand you will keep like this just to show so that it gets recorded properly. I am keeping the stand here. Most of the times when you will do the experiment, you will keep your stand like this in front of the assembly, right? This is the holder one. Suppose for example, these are generally the stands that we use for titration. Okay, we are using the same stand for this also. Now for example, this is coming in between, so we make it like this and I keep it like this. Okay, 1. Then I open it like this. Here we put it like this. ठीक है, हमको पता चल गया कि why are we putting this round bottom flask in the RBF. ठीक है, ये लगाने से पहले हमने इसमें हमारा बेंजानिलाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया. अब इसको RBF लगा दिया. Now when you are putting the RBF, अब हम बात कर रहे हैं कि why do we use this condenser? See, what we do is with this condenser, we put this one pipe inside, one pipe in this tank. अब ये जो है ना, ये पुराने pipes हैं. You do something like this and you fit it inside, or if you have a bigger mouth, you open it and you fit it like this in this. This is your inflow. Always remember, the inflow will come at the bottom. And you will have another pipe here which will be your outflow, and it will go in the sink like this. Clear? So it should not run around here and there. तुम्हारे टेबल के नीचे पानी बहना नहीं चाहिए. You have to be careful about that. ठीक है, ये. Now what we do is at times there is a time when बहुत पानी मुश्किल है इतना सारा फेंकना. एक तो हमारा जो टैप का स्पीड है शुरू में हम मेंटेन करते हैं. ये मेरे से अभी फिट नहीं हो रहा है इसके साथ. इसको हम फिल करते हैं. For example, like this. Somebody will just hold it for a while so that I can show it. उसको हम क्या करते हैं, डोरी से वहाँ पर नल से टाइट कर देंगे. ठीक है, एंड वी
tie one डोरी here also so that it falls in the wash basin and not on the table. ठीक है, जब थोड़ा पानी की कमी रहती है तो हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ लगा देते हैं, या शुरू में let it flow and then we just let it get attached to both the sides. That is not the right thing. That is only थोड़ा पानी बचाने वाली योजना. ठीक है, अब for example now if I fill it like this, see, suppose I fill the RBF, suppose I fill, see this is what everything will happen like this in the lab, so we cannot maintain it clean and neat. See, the water will rise. See, you are all able to see, right? So till the point that they'll start outflowing. फिर हम यहाँ पर प्रेशर ऐसा करके रखेंगे कि बस एक एक बूंद गिरता रहे. हमको सिर्फ हमारा पर्पस क्या है कंडेंसर का ये समझना है. ठीक है, अभी वाटर राइज हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये यहाँ पे वाटर राइज हो रहा है. अब वाटर राइज हम यहाँ पर वाटर क्यों भर के रखें? वी आर डूइंग दिस फॉर कंडेंसेशन. वी डोंट वांट दैट वट एवर वी हैव एडेड हियर शुड इवेपोरेट एंड इट. अब अगर हम ऐसा कुछ करेंगे घर में तो इवेपोरेट होकर वहाँ पे सूखते, देयर विल बी नथिंग. बट हियर व्हाट विल हैपन इज इट विल keep on raising as vapors. It will keep on raising. बस this is what we want. Now इसमें से एक एक बूंद गिरती रहेंगी so that this portion is cold. So every time the vapor will come up, this is acting as a condenser. This is called as a condenser. Okay. So every time the vapors come up, the vapors will again fall back in the RBF. हाँ हाँ, ये सब होगा अभी क्योंकि इतने दिन से ये सब यूज में नहीं है ना, देयर विल बी सच प्रॉब्लम्स. ठीक है, यू कैन गो चेंज अनदर पाइप बाय यू हैव टू डू ऑल दैट ओनली. अब ये RBF लगा लिया हमने. अब कोई तो भी आके मेरे को बोलेगा मैम इसमें से कुछ टपक रहा है, हमारा ये फूट गया है. फूटा नहीं है, हमारे जो वेपर्स राइज हो रहे हैं वही वापस सेटल डाउन होते हैं. ठीक है, व्हेन you have to put a condenser, otherwise what would have happened, सारे वेपर्स उड़ जाते और हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहता. गिवन टाइम जो भी दिया है उन्होंने 30 मिनट्स दिया है, तो यू शुड हीट इट फॉर 30 मिनट्स. जब भी हम यहाँ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हैं तो हमारा काम होना चाहिए कि हम पहले जाके हमारी असेंबली लगाएं, क्योंकि फिर 30 मिनट तो रुकना ही है उसके बाद. तो वो 30 मिनट में हम बाकी के सारे काम कर सकते हैं. जैसे ऐसे असेंबलीज है तो मैं क्या करती हूँ, 30 मिनट में मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ. तुम सबकी असेंबली लग गई तो 10 बराबर है. तो इन दैट टाइम बिकॉज आप असेंबली लगने के बाद हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, हमको सिर्फ उसको देखते रहना है 30 मिनट तक, कुछ नहीं करना. हमको सिर्फ ये मेंटेन करना है कि पानी बराबर फ्लो हो रहा है कि नहीं. राइट. और एक चीज़, जब ये हम हीट करते तब हम इसमें एक छोटा सा पोरोसिलीन का टुकड़ा डाल देते. अलॉन्ग विथ योर रिएक्टेंट्स यू पुट अ स्मॉल पीस ऑफ पोरोसिलीन. पोरोसिलीन मतलब हमारी बशी होती है ना, कप बशी की, उसका एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं. ठीक है, क्यों डालते हैं? ये है ना पोरोसिलीन. अभी आज के ज़माने में ये सब चीज़ें घर पे नहीं होती, पहले ज़माने में होती थी. पहले ज़माने में घरों पे दूध घर का ही होता था, बहुत सारा दूध आता था, तो घर ही पर खोआ बनाते थे. खोया कंडेंस्ड मिल्क घर पर ही बनता था. आजकल हम लोग ये सब चक्कर में नहीं पड़ते, हम घर भर में कंडेंस मिल्क नहीं बनाते. लेकिन जब ये लोग कंडेंस मिल्क घर में बनाते थे, दे यूज्ड टू यूज द सेम प्रोसेस. क्या करते थे, इतना बड़ा पतीला ले लिया दूध का और उसमें एक कप की जो सॉसर होती है ना, वो सॉसर उसमें छोड़ देते थे. यही प्रोसेस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक टुकड़ा पोरोसिलीन का डाल दें. पोरोसिलीन विल नॉट अलाउ द बम्पिंग इफेक्ट. The reaction, there will be heating, but it will be in a quiet form. Bumping होगी ना तो कुछ के कुछ काम हो जाएगा. So to avoid bumping, जब भी रिएक्शन में पोरोसिलीन है समझ जाना that is to avoid the bumping of the resin. क्या मैं क्लियर आप सबको? Right? So this is what you will do with the assembly. Once it is all done, ठीक है, once it is all done, once ये गरम को they tell you cool the solution in ice water mixture and add dropwise concentrated hydrochloric acid till the mixture is strongly acidic. Now what does this mean? हम क्या करेंगे, गरम निकाला और हमको ये याद रखना है कि जब हम केमिस्ट्री लैब में आने वाले हैं, हमको पता है हम थर्सडे को केमिस्ट्री लैब, फ्राइडे को केमिस्ट्री लैब में आते हैं, तो हमने थर्सडे को यहाँ पर एक चक्कर मारना और दुबे जी को बोलना कि हमारे लिए आइस रख दीजिए, या खुद आना और आइस रख दीजिए, जो भी चीज़ पॉसिबल है उसमें. मेरा आइस है रख के चले जाए, फ्रीजर में आइस रख के चले, बिकॉज सिंथेसिस में आइस का जैसे हीट का इंपॉर्टेंस वैसे आइस का इंपॉर्टेंस. ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ये निकाला, आई डोंट नो वेदर इन द फ्रिज देयर इज आइस,
क्योंकि आइस नहीं रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द प्रोडक्ट. मैडम हमारा तो कुछ आया ही नहीं. एंड यू नो वो डिसअपॉइंटमेंट आता. जैसे लास्ट वीक यू हैड अ प्रोडक्ट, तो यू आर वेरी हैप्पी कि हम कुछ तो भी घर लेके गए, रिटर्न गिफ्ट. यहाँ पर you will not get anything because suppose if there is no ice in the fridge, then what you do is you take this container, you put the beaker, ये वाला नहीं लेंगे, दूसरा वाटर बाथ लेंगे. वो वाटर बाथ में आइस के टुकड़े करके रख देंगे, ठंडा ठंडा पानी बना देंगे उसका. ठीक है. कभी तुमको लगे कि आइस कम हो गया हमारे पास, सब कप को पुर नहीं रहा, एक ही जन लाके पूरा आइस वेस्ट मत कर दो, ना डिवाइड कर लो. और फिर भी लगे कि थोड़ा सा कम पड़ रहा है आइस, पड़ेगा. अभी तो तुम इतने सही हो, जब बैक टू बैक सुबह और शाम दोनों प्रैक्टिकल चलते तो तुमने रख के गए, लेकिन वो सुबह वालों ने तब यूज करेंगे बिकॉज दे कम इन द मॉर्निंग ना. उनको थोड़ा ना क्या करना है तुमने क्या कहते हो, दे विल यूज इट इन द मॉर्निंग. तो ऐसा ये सब चक्कर होते रहता है. व्हाट एट टाइम्स यू डू, यू पुट सम सॉल्ट इन दैट आइस. क्या होगा, फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाएगा, थोड़ा और लोअर टेम्परेचर मिल जाएगा, जो कुल्फी वाला करता वही तुम करो. तो यू विल सेव द आइस ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. चलो भाई, अभी आइस में तुमने ये बिखा रखा इसमें, और इसमें यू विल ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कल के एक्सपेरिमेंट में भी तुमको बताया दैट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर. और यहाँ पर कितना ऐड करो बोल रहे हो, टिल द टाइम you add concentrated hydrochloric acid for example till the mixture becomes acidic. अब ये कैसे पता चलेगा, you are mixing, you are adding, you will take a pipette, okay, and with that pipette you will add एक दो बूंद of concentrated hydrochloric acid. Then with a stirrer all of you know right, yes. A glass rod, with a stirrer you will mix it in the beaker. ठीक है. Then when you mix, then एक litmus paper लेंगे and you will check. लिटमस पेपर में क्या है, what color should change to what, blue to red is acid. हाँ, red to blue is alkaline, blue to red is acid. So you get that, मतलब it is acid. Now once you have made it acidic, you will see that white colored product is separated out, and then you cool the mixture in the same container, filter it, and you get the product. And that is nothing but benzoic acid is formed. Clear? So you put the assembly first. You start with, and once you are done with the assembly, all of you, quickly, okay, once you are done with the assembly, then we discuss how to do the calculations for the last practical, and also how to do the calculations for this practical. Okay, but first thing is you start with your assembly and see if there is no ice, then at least put some water there so that you have at least chilled water in the next 30 minutes. Okay.